Yesterday we discussed, day day before yesterday. 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 Yeah, yesterday. मैम हाँ मैम कल कोई है जीटी का बच्चा जिसका पेपर हो? होंगे बेटे, मुझे याद ही नहीं रहता. There must be. Okay, tell me where were we? Where were we? ये हो गया था. मैम ये आफ्टर 397. After 397. After 397. 397. After 397. 401 है मैम. 401 yesterday we discussed. So Yes 402. मैम 400 हो चुके हैं कल. वर्टिकल सीधी भी कर लिया था. Okay. Okay. Some people believe that the government should spend on new public buildings such as libraries and museums rather than renovating old buildings. To what extent do you agree or disagree? Okay. So this is again an agree disagree essay. You have three options in handling an agree disagree essay. You can strongly agree, you can strongly disagree, you can agree or disagree by giving concession to the other side. Okay. Now in this Yes. essay, I have strongly agreed. Okay, let's see how you come to know that whether it is a totally agree essay. It is believed by some that government resources should be spent on constructing new public buildings rather than restoring the old ones. I believe that there are numerous benefits of developing new buildings from scratch. From scratch का क्या मतलब है? New buildings from scratch. This means नई बिल्डिंग बनानी. हाँ नई बिल्कुल हाँ. नई तरीके से बनानी है, रेनोवेशन नहीं करनी है. Yes. And following this direction is justified. Okay, बिल्कुल simple भी लिख सकते हो. I believe that there are numerous benefits of developing new buildings from scratch, and so old buildings should not be renovated. Okay, like that. Yes. The main मैम from scratch का क्या मतलब है? एक मिनट. From scratch means बिल्कुल शुरू से. एक मिनट, just let me answer this. Hello, हाँ जी. Good morning. मैम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪੈਸੇ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਰਤੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਵੀ I was feeling very surprised. I said ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ. ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੋਲਿਆ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀਤਾ. That is why. Sorry for that. I forgot to mute it in between. Anyways, chalo. This is scratch ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ. From scratch means from the like ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ. From scratch ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. I started this new business from scratch. ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. From scratch means ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. And then you built it up slowly. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ From zero, right? From zero. Yes, from zero. Okay. बिल्कुल new बनानी. ये आ गया समझ? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The main reason the government needs to spend on constructing new buildings rather than renovating older ones is the environmental and health benefits. Old buildings produce a vast amount of emissions and waste that has a negative effect on both human and ecological health. By contrast, new buildings built using green methods in design and construction consume less energy, conserve water, lower greenhouse gas emission, and generate less waste. Can you mute all the participants? Okay.
the improved indoor air quality and environment is also beneficial for people's health. Okay, अब ये point ना net से लिया था कि जो पुरानी buildings है ना, जो नई जो buildings बनती हैं, वो environmental and health benefits देती हैं, because old buildings जो है उनकी vast amount of emissions and waste है, that has a negative effect on both human and ecological health. By contrast, new buildings जब renovate करते हैं ना, तो उनको बहुत सारी मतलब कुछ तोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो वो वेस्ट जो होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोथ ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल हेल्थ. बाय कंट्रास्ट, न्यू बिल्डिंग्स आर बिल्ट यूजिंग ग्रीन मेथड्स. न्यू बिल्डिंग्स बिल्ट यूजिंग ग्रीन मेथड्स इन डिजाइन. ग्रीन मेथड्स कौन से होते हैं? इको-फ्रेंडली मेथड्स. हाँ, Eco-friendly, renewable source. हाँ. देखो आप यू डोंट लकड़ी के दरवाजे नहीं लगते. आपको पता है आर्टिफिशियल ये जो वुड है उसके बनते हैं, कुछ मटेरियल्स Yes. और हैं फॉर विच वी डू नॉट नीड टू कट ट्रीज. And then other things also environmentally friendly लग रही हैं buildings में, new buildings में. Yes. ठीक है. Yes. In design and construction, these consume less energy. ये जो materials हैं इनमें less energy लगती है, इनमें conservation of water भी होती है, lower the greenhouse gas emissions and generate less waste. आपको पता है जब पहले घर बनते थे, आपके शायद आप भी बहुत छोटे हो सब लोग, कभी देखे घर बनते थे तो सुबह शाम कहा जाता था पानी डालो, Yes. Yes. अभी Yes. आजकल कुछ नहीं ऐसा करना पड़ता. नहीं. ठीक नहीं. है. सो जो नए मेथड्स है ना, दे आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली. इसलिए नई बिल्डिंग जो है नए मेथड से बनानी चाहिए, पुरानी को रेनोवेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट हैज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड हेल्थ बेनिफिट्स. ठीक है. क्योंकि इन जो नई बिल्डिंग्स है ना, इनमें इंडोर एयर क्वालिटी और एनवायरमेंट बहुत बेनिफिट करता है लोगों को, हेल्थ को भी. इट्स मच बेटर. ठीक है. इनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होती हैं और लेस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो नए मेथड्स हैं ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स. ठीक है. Secondly, renovation can be a lot more complicated and expensive than just building from scratch. It is much easier to design a building with a specific purpose in mind than to convert a building intended for a different use. अब देखो जब हम renovate करेंगे तो complicated नहीं हो जाएगा. अभी हमें कुछ और चाहिए पर renovation में हमें करना, अच्छा ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये ऐसे बन नहीं सकता, इसके हिसाब से कुछ कर लेते हैं. तो जो नई बिल्डिंग बनानी है वो ज्यादा easy हो जाती है और लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एंड इट इज इवन लेस एक्सपेंसिव, ओके, देन रेनोवेटिंग. ठीक है. इट्स मच इजियर टू design a building with a specific purpose in mind than to convert a building intended for a different use. Renovation is expensive as some of the materials used in traditional buildings like marble and stone are much more costlier than currently used materials like concrete and reinforced steel in modern buildings. ठीक है. New buildings would also require less maintenance and thus save money in the long term as well. तो ये दूसरे पैरे में दूसरा पॉइंट है. पहले पैरे में क्या पॉइंट था? गुड फॉर एनवायरमेंट एंड गुड फॉर इंडिविजुअल्स हेल्थ. सेकेंड पैरे में क्या पॉइंट है? लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस costly to make new buildings than renovate the old ones. Okay. And third पैरे में, finally, due to increasing natural disasters, many countries have come up with very strict building codes. For some old or outdated existing buildings, it may be impossible to bring the entire building up to the current code. For example, flood prone areas require buildings to be elevated, but for some old buildings it is not feasible. तो जैसे आजकल नेचुरल डिजास्टर्स भी बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आपको पता है ना, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स भी बढ़ रहे हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ऐसी चीजें ज्यादा हो रही हैं पहले के हिसाब से. तो कई कंट्रीज ने ना स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स लागू किए कि बिल्डिंग बनानी है तो अब ऐसी बनानी पड़ेगी. वैसे मैं और एग्जांपल दे रही हूँ. अब जैसे अब आपने कोई मैरिज पैलेस बनाना है तो मैरिज पैलेस को अप्रूवल ही नहीं मिलनी जब तक आप उसकी पार्किंग पहले नहीं शो करते कि आपके पास कितनी है, जहाँ पे भी है. Yes. पहले ऐसे नहीं था, तो कई जगह ऐसी बिल्डिंग्स बनी है. जस्ट 1 सेकेंड.
ओके, सो इट वाज माय डॉटर, वो क्यू कार्ड्स की फाइल कंप्लीट कर रही थी रात जाग के, अब कह रही है अब मैं सोने लगी। चलो, एंड टुमारो आई वुड लाइक टू टेक अ क्लास ऑन द न्यू क्यू कार्ड्स. Would you like to join? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, okay. So कल I will be holding this class. जो नए कुछ क्यू कार्ड्स हैं, we'll be discussing them. ठीक है? Yes, मैम मेरी एग्जाम अकॉर्डिंग टू यहाँ के टाइम पे परसों होगी, सो मैं कल हाँ। अटेंड कर पाऊंगी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुबह कर लेंगे क्लास. Yes. ओके, एंड देन थर्ड पैरे में ये कोड्स आ गए हैं, उसका पॉइंट डाल देना. तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अब 3 पॉइंट्स एक बार कर लो. अगर ये ऐसे है तो आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है? और कोई किसी के Yes. मन में आ रहा है और कोई प्लान जो कि इस ऐसे में डाल सकते हो रादर देन रेनोवेटिंग? एनी अदर आइडिया दैट इज कमिंग मैम अप? वाइल करके बना सकते हैं ना फाइल करके सोच बताओ क्या बनेगा. मैम? जैसे वाइल गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन कंज्यूमिंग ऑन कंस्ट्रक्टिंग न्यू बिल्डिंग, हाँ, however I disagree that they should not ignore the restoration of historical buildings too. ये हिस्टोरिकल की बात नहीं आ रही है. मैम अच्छा, ओके फॉर मैम. लाइब्रेरीज ओल्ड एंड म्यूजियम्स हैं, जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके ऐसी मतलब लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स या पब्लिक बिल्डिंग्स ओल्ड को रेनोवेट करके बनाना है और न्यू बनानी है. उनका Use the recycling method. Materials are used the using recycling materials. So if you want to go in in for old renovating buildings. old buildings, you can also say कि renovate कर लेना चाहिए, because that is like that will be much less. आप लिख सकते हो much less expensive. आपने अपना point prove करना है कि renovation में much less expensive है, old building ज़्यादा sturdy है, ऐसी बातें कर दो. हमने कल परसों एक ऐसे डिस्कस करा था ना, जिसमें हमने करा हाँ. ट्रेडिशनल स्टाइल में बिल्ड करनी चाहिए. जो हमने वहाँ पॉइंट डाले वो इसमें डाल सकते हो कि ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स है, ओल्ड बिल्डिंग्स है, दे आर मोर ड्यूरेबल, बेटर, उनको यूज करना बेटर है और बहुत खर्चा बचेगा. एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर प्रिजर्व होगा. ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट. यू कैन राइट दैट. Yes. ठीक है? Use the recycling method. Use the material of. हाँ, तो वो रिसाइकल्ड ही हो गई ना, जो ओल्ड बिल्डिंग्स को हमने यूज कर लिया रेनोवेट करके, तो दे सॉर्ट ऑफ रिसाइकलिंग ओल्ड बिल्डिंग्स हो गया ना. अपसाइक्लिंग थोड़ा बेटर करके उनको यूज करो. दैट यू कैन राइट दैट आल्सो. ओके, पर अगर आप ये लिखते हो तो इसमें पॉइंट्स क्या हैं? इसमें ये पॉइंट्स हैं that first is it's good for the environment, good for the health. Second point, less complicated to build new buildings and less expensive than renovating. Okay, finally, building codes are there now, new according to the new climatic changes. New building codes have been developed by many countries, so new buildings should be made with these codes so that they are less prone to these environmental hazards, natural disasters such as earthquakes and floods. I mean, even renovation lasts for just 1 or 2 years, but new construction buildings last for about 5 or 10 years. हाँ, तो you can put that point. बड़ा अच्छा point है ना? न्यू नहीं, 5 और 10 क्यों, ज्यादा लास्ट करती है ना. ओल्ड बिल्डिंग्स हाँ. ऑलरेडी ओल्ड, they can fall down any time. उनकी रेनोवेशन, वही पॉइंट हमने लिखा है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है. ओ पंजाबी में कहावत है, सोटे नू सोना लाना. हाँ जी मैम. है दैट कहावत फॉल्स वेरी ट्रू कि पुरानी बिल्डिंग पे इतना पैसा खर्चने से अच्छा नहीं बनाओ. Yes. ठीक है? दैट इज दैट यू कैन पुट अप लाइक दैट. ओके. Okay, some people believe that living in big cities is becoming more difficult. Others believe that it is getting easier. Discuss both views and give your opinion. तो एक पैरा बना देना, why some people believe it is becoming more difficult. इसके points क्या है? Easy essay है. Yes, Galaxy, you are raising your hand. Anything you would like to say? नाम नहीं है ना, एक तो मैं नाम Galaxy J6. Anything you would want to say? Okay. To some extent, ये किसी ने कमेंट्स में डाला, to some extent renovation is also important. हाँ, ठीक है,
ठीक है, आप फिर वो लिख सकते हो कि सम ओल्ड बिल्डिंग्स शुड बी प्रिजर्व्ड, बट ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, तो थोड़ा कंसेशन हो जाएगा। जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू, उन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर लो और यूज कर लो, ठीक है। ओके, सो हियर वी आर कमिंग अप टू दिस एसे। अच्छा, टेल मी, व्हाई डू यू थिंक लिविंग इन बिग सिटीज इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट? Because traffic problem. Pollution. Pollution and congestion, congested areas yes, and no playground for the children. हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक प्रॉब्लम मैम, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, Living है, space. हाँ Health problems. हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है बिग सिटीज। yes, crime rates. Expensive, ma'am. Expensive. As compared to तो एक पैरा village. बन जाएगा आपका Quality while- of So one yeah, para, quality one of para is life. done. Why living in old big cities is becoming difficult? Now tell me why it is becoming easier. Why do some people say? Number of facilities Ma'am, available like healthcare बढ़िया. education, हाँ, companies available see, so it's people very can easy. easily Wi-Fi get job. facilities भी है Pu- almost free में. Public transport. Public Yeah. transport is Job good. opportunities. Job opportunities. It's becoming easier. Yes. Entertainment Ma'am, 24 facilities into better है. 7 society. Mom, Yes. network. Good network. Yes. So then your view, उसमें क्या डालोगे, किसके साथ जाओगे? Easier. Easier के साथ चले जाओ, क्योंकि हाँ, उसमें ज्यादा पॉइंट हो गए। हाँ, ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल के अपना पैरा बनाना। आप उसमें ये लिख देना कि जो प्रॉब्लम्स लिखी है ना सिटीज की, उनको कंट्रोल वो सॉल्व, हाँ वही, हाँ वो, जैसे यू कैन से हाँ, CCTV कैमरास है जगह जगह, एंड देन यू नो अभी तो पॉल्यूशन पे भी तो फाइन लेते हैं, रोड जैसे ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया गया है, जैसे मेट्रो वगैरह दिल्ली में बना है, उससे काफी कम हो गया है। Odd even systems start करा था state. Yes, State so government, governments yes. are taking steps to make the life easier. Ma'am, carpooling. And all you can talk Public about. transports अच्छे हैं. ठीक है, हाँ. So this essay you can write ना, अगर आ गया. yes, This essay is, in many countries the quality of life in the large cities is becoming worse. What causes this problem? What measures can be taken to solve it? This essay was seen recently. similar. 2-3 हाँ. इसमें causes, problem, solution है. Okay. अब लाइफ वर्स क्यों हो रही है, उसके प्रॉब्लम मांगे हैं। वर्स के इफेक्ट नहीं मांगे। उसमें ये था कि वर्स हो रही है, तो उसमें कैसे वर्स हो रही है। इसमें कॉजेज व्हाई सिटीज की लाइफ वर्स हो रही है तो वही ना, वर्स क्यों हो रही है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पुअर एयर क्वालिटी, ग्रेटर क्राइम रेट, ओके, फिर ओवर पॉपुलेशन है तो अफोर्डेबल नहीं रही, पॉपुलर डेंसिटी, मैम लॉन्ग वर्किंग आवर में, हाँ, लॉन्ग वर्किंग आवर, कंपटीशन ज्यादा मैम, वर्किंग आवर्स, ठीक है, कंपटीशन कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया ना। relationships भी नहीं है इतने strong. तो what can be bonds भी done? नहीं है. What can be done to social control? isolation. जैसे प्रॉब्लम है, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करो, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज मुश्किल कर दो, बाइसिकल्स प्रमोट करो। यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ डेनमार्क। yes, Amsterdam and वहाँ पे 19,000 kilometers of bicycle tracks गवर्नमेंट ने बनाए हैं, and many people have come down to bicycling, and you know उसमें 400% तक एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। मैम इवन yes, और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई और लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई है। Okay, yes, but it is only because of the government's initiative to provide bicycle tracks, because it is not safe to go on bicycle on the main road. yes, वो government का initiative है। even in Panchkula, the Haryana government provide paid bicycles. Okay. Yes, at every bus stand. What is that? सुप्रीत, आवाज थोड़ी घट आ रही है। Just wait. हाँ। Ma'am, now I am audible. Yes, better. Yes, ma'am. In Panchkula, at every bus stop, there are cycling racks from where we can download an app and we can use these cycles, and they charge I think 5 rupees for 10 kilometers. Oh wow, that's great. Yes, How do they come to know 10 kilometer चला है? उसमें ट्रैकिंग होता By है, navigating from application. एप्लीकेशन। Okay, ठीक है। They provide one OTP, and after OTP we can unlock the bicycle. Oh. या ऐसा अहमदाबाद में भी है, मतलब रिवर फ्रंट पे सारे लोग साइकिलिंग और वो सब करते हैं। तो same in Yes, Delhi, ma'am. same in Delhi.
मैम ये भी Yes. बात कंपलसरी नहीं है कि आप सेम बाइसाइकिल स्टैंड से उठाओगे और सेम पे रखोगे, जहां मर्जी रख Yes. सकते हो। अच्छा, Yes. that's very nice. Next stop, हाँ जो भी मैम next stop आईआईटीज आएंगे। में है ये, आईआईटी कानपुर में भी है। Okay, that's very nice. Okay, मैम, मेरे को ये पता था कि जैसे वहाँ यूएस में मैडिसन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैडिसन है, विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मैडिसन में, वहाँ उसको कहते हैं सिटी ऑफ बाइसिकल्स। वहाँ बाइसिकल्स ही बाइसिकल्स दिखते हैं, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सारे बाइसिकल्स बहुत यूज करते हैं वहाँ पे, बहुत बाइसिकल्स वहाँ दिखते हैं, एंड कम कार्स एंड कम वो दिखते हैं। मैम आईआईटीज की जो फैकल्टीज होती हैं थोड़ी दूर होती हैं, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अपनी बाइसाइकिल अपने रूम के बाहर ही खड़ी करते हैं। हाँ देखो, उनके रूम्स, उनके वो दूर होते हैं रूम्स वगैरह, यस मैम, कैंपस बड़ा होता है। बड़ा होता है। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में भी कैंपस बड़ा होता है। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ अमृतसर, पर वहाँ पता है क्या फर्क होता है? देयर इज अ डिफरेंस। जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना वो सिटीज के बीच में होते हैं, और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो सिटीज के बाहर होते हैं। बाहर होते हैं, हाँ। बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस को सिटीज के अंदर लोगों को उनकी जरूरत हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल्स हैं, तो वो सिटीज के अंदर होते हैं। मेरे को आई रिमेम्बर मेडिकल कॉलेज में जब मैं थी तो हमारे भी बहुत वाइड, बहुत स्प्रेड आउट था मेडिकल कॉलेज, सारे विंग्स दूर दूर थे। और मेरे पास साइकिल तो नहीं, मैंने लूना रखी हुई थी, उस टाइम पे लूना होती थी। पता नहीं आप लोगों ने लूना सुनी भी है कि नहीं? देखिए हाँ देखिए, बहुत पुरानी बात है। तो बाइसिकल्स होते थे, मेरी फ्रेंड्स के पास, कईयों के पास बाइसिकल्स थे, मेरे पास लूना थी। और फिर मैं वो मेरे हाथ पकड़ के हम सड़कों पे ऐसे जाते थे, वो खुली खुली सड़कें थी, ट्रैफिक कम था, और इट वाज एंजॉयबल टाइम। ओके, पैडल से स्टार्ट करते थे आप, जैसे साइकिल का पैडल? क्या? जैसे मैम जो लूना होती है ना वो जैसे पैडलिंग से स्टार्ट होती है, पहले उसको पैडल के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे बाइसाइकिल के पैडल होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, वैसे स्टार्ट होते हैं। और फिर अगर अगर पेट्रोल खत्म हो जाता था तो पेडल होके भी चल जाती थी। वो इशू नहीं था उसका। इट वाज मेरे दादाजी के पास थी, पर हम कहते थे दादाजी अगर आप ये लेके जाओगे अब आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? मैंने तो लूना पे बड़ा बड़ा एंजॉय करा है, मैं और मेरी वो एक्टिवा, मतलब कि वो क्या करते हैं, एक साल एक्टिवा लेते हैं, अगर उसको बेच के फिर लूना ले लेते हैं, फिर घर वाले बोलते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर एक्टिवा। मतलब कि लूना उनको बहुत अच्छी लगती है, पर घर वाले थोड़ा चीची करते हैं तो फिर बेच देते हैं बेचारे। अभी मिलती है लूना? यस हाँ जी, उन्होंने मिलती है जी, मैंने तो देखी नहीं अब कहीं पे। ओके चलो, टॉपिक एनीवेज, हाँ this is next essay देखो, an increasing number of people choose to live in big cities. What problems will this bring about? Should the government encourage people to live in small towns? अब ये essay देखो, बहुत से लोग ये पता है क्या, ये urbanization का essay है। This is an essay on urbanization, ठीक है? अब urbanization जो है वो हो रही है कॉमन, है ना? उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? वो रैपिड अर्बनाइजेशन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन है, व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस लीड टू? तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि पॉपुलर डेंसिटी। अच्छा, दूसरा मैंने शुड द गवर्नमेंट एनकरेज पीपल टू लिव इन स्मॉल टाउन्स, उसके लिए मैंने एग्री नहीं करा। इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच, ये लिखा है, क्योंकि स्मॉल टाउन्स ही सिटीज बन जाएंगी, बात तो वहीं की वहीं जाएगी ना। तो बेटर और सॉल्यूशंस बेटर है, मैंने ये लिखा कि दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन, ठीक है? सो लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स हैं? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। एक तो पहला सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है कि सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना प्रेशर आ जाता है। सो मोर एंड मोर पीपल क्राउड इनटू सिटीज, तो वाटर डिलीवरी, सीवेज डिस्पोजल इनएडिक्वेट हो जाती है, ठीक है? और फिर ज्यादा व्हीकल्स हो जाती है और उसके लिए कंजेशन हो जाती है, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन बढ़ जाती है, ठीक है? और विलेजेस पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है, क्योंकि वहां पे यंग पीपल रहते ही नहीं है और वहां पे एग्रीकल्चरल लेबर खत्म हो जाती है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है विलेजेस में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एकदम से फ्लॉक टू सिटीज करते हैं, एंड विलेजेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, सिटीज में भी। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है? Admittedly, if government encourages people to live in small towns, it would have a positive impact on the overcrowding of some cities. Less traffic हो जाएगा, less होएगा. In addition, there would be less strain on the services offered by the city, like banks, public transportation, restaurants. This would mean a reduction in queues and faster. मैंने लिखा admittedly कुछ फर्क तो पड़ेगा. However,
पर मैंने साथ में इसको negate कर दिया अगले पैरे में. A problem would be that a dramatic reduction in number of people in the cities would mean that many businesses would go broke. अब क्या होगा कि cities में कई businesses हैं, एकदम से लोग रहना कम लोग हो जाएंगे cities में, तो वहाँ पे कई लोगों के रेस्टोरेंट चलने बंद हो जाएंगे, कैफे चलने बंद हो जाएंगे, और उस जो स्मॉल टाउन्स हैं वो लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे अपने रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज को, वो बिग सिटीज बन जाएंगी. बात तो वहीं की वहीं होगी ना. यू आर जस्ट सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम किसी और जगह पे पैदा कर रहे हो. ये मैंने Yes. लिखा है. तो बेटर वुड बी कि हम कनेक्टिविटी इंप्रूव करें, कनेक्टिविटी ऑफ द स्मॉल टाउन्स एंड बिग सिटीज, ताकि लोग काम करने आए सिटीज में और वापस अपने घर में चले जाएं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, ट्रेन सर्विस हो, मेट्रो. जैसे अब देखो कई लोग दिल्ली में बाहर रहते हैं या और मेट्रो की वजह से उनको टाइम नहीं लगता अपने वर्क प्लेस पे. Yes. Noida और वो. हाँ, मेट्रो में रियली टाइम नहीं लगता. इट्स रियली टाइम सेविंग. इफ यू हैव ट्रैवल्ड बाय मेट्रो इन दिल्ली, यू विल नो कि कोई आप कार में जाते हो जहाँ 1.5 घंटा लगता है, मेट्रो में 20 मिनट ही लगते हैं. Yes. फटाफट स्टॉप्स आते जाते हैं. एंड यू नो कई लोग फिर उसकी वजह से डेली जो कम्यूट करते हैं वर्क प्लेस को, रहते अपने आउटस्कर्ट्स में ही है. सो नेचुरली क्राउडिंग कम रहेगी. ठीक है, तो ऐसा कोई सोल्यूशन बेटर सोल्यूशन है. ठीक है. Okay, next essay is the movement of people from agricultural areas to cities to work can cause serious problems in both places. What are the serious problems and what measures can be taken to solve this problem? चलो बताओ. Both places में serious problem है, हमने डिस्कस करी है. लिख सकते हो ना क्या प्रॉब्लम आएंगी cities में, ऐसे ही villages में क्या प्रॉब्लम आएंगी, विलेजेस में क्या प्रॉब्लम आएगी. चलो ये बताओ. दोनों इन्होंने तो दो मांगी है. हाँ, एग्रीकल्चर सफल हो जाएगा और फिर एग्रीकल्चर पे सीधा प्रॉब्लम. यंग पीपल सारे सिटीज में चले जाएंगे तो ओल्ड पीपल अकेले रह जाएंगे, वो लोनली फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे. इकोनॉमिकली ग्रोथ कम हो जाएगी मैम विलेज में. हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिकली ग्रोथ कम हो जाएगी. वेरी गुड. एंड हाउ टू एड्रेस दिस इशू? ये है कि विलेजेस में प्रोवाइड करें और फिर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर दो. बस यही दो लिखो. Yes. आपका ऐसे बन जाएगा. ठीक है. ये एक ऐसे है, सिमिलर ऐसे. द मेजर सिटीज इन द वर्ल्ड आर ग्रोइंग फास्ट एज वेल एज देयर प्रॉब्लम्स. What are the problems that young people living in cities are facing? Give solutions to these problems. Young people को cities में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये अगर ऐसे आ गया, इसमें क्या लिखोगे? यंग पीपल को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? Competition, cutthroat competition for job. आ रहा है. वेरी गुड. low wages. They have to travel long for the workplace. और उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उनके काम पे. देखो एम्प्लॉयर्स के पास ऑप्शंस बहुत हैं. टाइम नहीं दे पा रहे फैमिली को. Mental peace, स्ट्रेस बढ़ जाएगा उनका, इंक्रीज होगा स्ट्रेस. यस. And similar as say young people are leaving their homes in the rural areas to go and work in the cities. Why do they do so? What are the consequences? How to solve the problem? अब इस ऐसे में causes मांगे हैं, effects मांगे हैं और solutions मांगे हैं. तो आपको 3 पैरे 3 चीजों के बना देने हैं. ठीक है. Wages are lower than livelihood expenses. सुप्रीत, आपकी आवाज थोड़ी दूर से आती है. Wages are lower than livelihood expenses. लाइवलीहुड एक्सपेंसेस. हाँ, वेजेस आर लोअर देन लाइवलीहुड. वही मैं कह रही हूँ ना, एक्सप्लॉइटेशन होती है बिकॉज एम्प्लॉयर्स के पास बहुत ऑप्शंस है, बंदे बहुत हैं काम करने वाले, तो वो कम वेज पे रखते हैं और उनके जो यंग पीपल है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कम पे एक्सेप्ट करके काम करना पड़ता है. ठीक है. Yes. तो लाइवलीहुड उनके एक्सपेंसेस ज्यादा है शहरों में और उनकी कमाई उस हिसाब से नहीं है. सो दैट इज अ थिंग. और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये लिखने. आपको इफेक्ट्स बताओ. हमने इफेक्ट्स नहीं अभी. यंग पीपल पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? Mental illness, type of mental disorders, social isolation और social isolation. फिर लिख सकते हो कि उनमें क्राइम, दे रिजॉर्ट टू क्राइम, ये इफेक्ट हो जाता है. yes. पेटी वर्ड यूज कर सकते हो. influenced in all type of areas, but they can't straight in a particular area. In a city, in a big city's problem
For a individual student, they influenced in a type of areas, but they can't stable in our living style. Yes. तो मतलब आप They always attract in a different ways, but they can't living in our own style, and they should go in a mental disorders. हाँ, तो मेन इफेक्ट यही है ना, उनकी मेंटल हेल्थ सफर करेगी. आप बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखना, दे विल बी स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, इट विल अफेक्ट ऑन देयर मेंटल एंड देन फिजिकल हेल्थ आल्सो. एंड सेकंड पॉइंट इज दे कैन रिजॉर्ट टू पेटी क्राइम, तो सोसाइटी पे भी उसका नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा अल्टीमेटली. ठीक है मैम, वी कैन आल्सो से And it can also education reduce their status is productivity. इंद्रजीत low. प्लीज आप बोलो, एक मिनट. हाँ इंद्रजीत, क्या बोल रहे थे आप? Ma'am, we can also say like it can also reduce their productivity towards their work. Yes, Yes, of course, yes. yes, it will reduce their productivity for sure, because see, they are all the time stressed, and a stressed person cannot work to that efficiency. Yes. Okay, अब ये अगला ऐसे देखो, housing shortage in big cities can cause severe social consequences. Some people think only government action can solve this problem. To what extent do you agree or disagree? तो मैंने इसको while वाला बनाया कि while government action can solve this problem to a large extent, I believe that the people in the real estate sector and ordinary people can also help in this regard. कि जो real estate में लोग हैं, जो ये property dealers वगैरह हैं, they can also help. मतलब housing shortage हो रही है big cities में, उससे social consequences हो रहे हैं. पहले तो ये एक fact दिया उन्होंने, ठीक है, इसके साथ आपने agree disagree नहीं करना है. This is a fact. ये जो हाउसिंग शॉर्टेज है उससे सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, अब हमें वो सोशल प्रॉब्लम्स की भी नहीं लिखनी है. ठीक है, पर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती है हाउसिंग शॉर्टेज को, और बाकी लोग कह रहे हैं कि आम जनता भी सॉल्व कर सकती है थोड़े हद तक, और जो रियल एस्टेट नहीं, बाकी नहीं कह रहे हैं. मैंने अपना पॉइंट दिया कि while government can play a major role to mitigate the problem of housing shortage, I believe that the people in the real estate sector and ordinary people can also help in this regard. ये समझ आ गया आपको? तो एक पैरा आप बना दोगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और दूसरा पैरा बना दोगे कि रियल एस्टेट वाले लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, और तीसरा बना दोगे कि इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मैम एक रीसेंट एग्जांपल है इसका. जैसे अभी पीएमओ से ये आई है, क्वेरी आई हुई है कि जितने भी बिल्डर्स हैं उनको एक बजटेड फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब कि अंडर 20 lakhs कि एक मीडियम पर्सन भी खरीद. यस मैम, ये फ्लैट्स बनेंगे जो कि एक मीडियम पर्सन जो होते हैं वो ही बाय कर पाए. और वो सब वो सोसाइटीज में बनने ही बने. हाँ देखो, ये है कि जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में. दे कैन ऑलवेज कम आउट विद आइडियाज फॉर मेकिंग लो कॉस्ट हाउसिंग. ठीक वो है, मैम मैंडेटरी हो गया है कि अगर कहीं पे भी सोसाइटी बनती है तो वहां पे अंडर 20 lakhs के फ्लैट्स बनेंगे ही बनेंगे. हाँ बनेंगे. ये बहुत अच्छा है. Yes. ये भी गवर्नमेंट का स्टेप है, पर इसमें कौन हेल्प कर रहा है? रियल एस्टेट के लोग. यस मैम, जब तक वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा. हाँ, वेरी गुड सार्थक. और जो मैंने अपना पॉइंट डाला है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे हाउसिंग निकालती है, हाउसिंग स्कीम, तो लोगों को आगे आके उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए. हाँ, ठीक है, अगर लोग आगे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल कैपिटल गवर्नमेंट का रेज हो जाएगा और फिर जल्दी बन जाएंगे ऐसे घर. हाउसिंग शॉर्टेज जल्दी ठीक होगी, फास्टर एंड बेटर. तो लोगों का भी हाथ है, रियल एस्टेट वाले लोगों का भी हाथ है, और गवर्नमेंट का मेजर हाथ है. ये ऐसे बना लोगे अब आया एग्जाम में तो. यस मैम. ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. यस मैम, इसमें जैसे ये पॉइंट दे सकते हैं कि इंडिविजुअल ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि वो जो अलग अलग रहते हैं वो इकट्ठे रहना शुरू कर दें, जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर ना हो. दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट. See, if there are two people living in one big house and two people living in another big house, it's better 4 people live together. जॉइंट. yes. उससे उनको फायदा होगा. उससे उनको ये फायदा होगा, देखो जब 2 घर होते हैं तो 2 फ्रिज चाहिए, 2 AC चाहिए, मतलब हर चीज डबल चाहिए आपको.
या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एनर्जी एक्सपेंस लेस होगी। हाँ, एनर्जी एक्सपेंस लेस होगी। फाइनेंशियल बर्डन भी ये सारी चीजें रिड्यूस लोग कर सकते हैं कि इकट्ठे रहें और जॉइंट Yes. फैमिली प्रमोट पीपल, और फिर Yeah. लोगों की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी जो आजकल सोशल आइसोलेशन हो रही है लोगों की, वो भी यस यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब रेंट में सब लोग साथ में रहते हैं, मतलब अगर बड़ा घर हो तो रेंट शेयर करते हैं और 4-5 जन रहते हैं। वो तो है। बाहर तो ऐसे रेंट शेयर करने पैसे भी बचते हैं और हाँ। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, रेंट शेयर हाँ, हो और जाता है। और स्टूडेंट्स सारी मतलब स्टूडेंट्स तो ऐसे ही हाँ रहते हैं जाके। फैमिलीज भी रहती है कभी कभी, मतलब सेम स्टेट के हो और फिर सब कुछ अच्छा हो जाए तो रहती है। ओके, ये हो गया इससे। ये वाला ऐसे देखो, इन मेनी सिटीज प्लानर्स टेंड टू अरेंज शॉप्स, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड होम्स in specific areas and separate them from each other. Do you think the advantages of this policy outweigh the disadvantages? मैंने लिखा है कि बेनिफिट्स ज्यादा हैं अगर शॉप, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड होम्स है स्पेसिफिक एरियाज में हो जाए, उसके मैंने बेनिफिट्स ज्यादा लिखे हैं और नुकसान कम लिखे हैं। ठीक है, तो 2 पैराज में मैंने बेनिफिट्स डाल दिए और 1 पैरा में नुकसान डाल दिए। ठीक है, अब बेनिफिट्स के पॉइंट्स देख लो क्या है। आपको इंट्रो में ऐसे के इंट्रो में आपको अपना व्यू देना है कि क्या ज्यादा है, कि अगर हम ये करते हैं सेग्रीगेट करते हैं कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। जैसे आप देखो बड़े बड़े शहरों में, आप देखो एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ सारी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, फिर एक मार्केट एरिया होता है जिसमें सारी शॉप्स है, जैसे 17 सेक्टर चंडीगढ़ है, उसमें सिर्फ शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, घरों की साइड में कोई किसी का प्राइवेट कोई ऐसे बिजनेस नहीं है या कोई ऐसा नहीं है, स्कूल नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, उनके एरियाज अलग है। तो इस चीज के फायदे मैंने ज्यादा लिखे हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट बचता है मैम। ट्रैवलिंग कॉस्ट क्यों बचता है, ज्यादा होता है। हाँ, बहुत अलग अलग जगह मैम पे जाना ऐसे पड़ता है ना। ये इसका हो जाएगा कि जैसे स्कूल के एरिया में ट्रैफिक कम होगा तो स्कूल के बच्चों को सेफ्टी ज्यादा होगी उनको, क्योंकि उधर ट्रैफिक कम हो जाएगा आने जाने का, आप जो वैसे ऑफिस जाते रेजिडेंशियल हैं। एरियाज में सबसे पहला लिखो ना, वहाँ लेस नॉइज होएगी। Yes. क्योंकि बिजनेसेस एंड शॉप्स के साथ नॉइज तो एसोसिएटेड है ही है। ठीक है, उससे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी अगर रेजिडेंशियल एरिया सेपरेट होंगे। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, गुजरात का जो कैपिटल है ना वो ऐसे बना है, सेम टू सेम, मतलब अलग अलग सेक्टर्स है और सेम टू सेम गांधीनगर अच्छा ऐसे ही बना है। हाँ, सेकेंडली लैंड यूज जोनिंग आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल लैंड प्राइसेस फॉर रेजिडेंशियल एरियाज। अगर लैंड यूज की जोनिंग हो जाएगी, अगर ये रेजिडेंशियल एरिया है तो रेजिडेंशियल एरिया में फिर कमर्शियल नहीं हो पाएगा। हाँ, सस्ते नहीं होंगे फ्लैट्स वगैरह, घर वगैरह। यस मैम, एक बार और अगर मिक्स्ड लैंड यूज हो तो रेजिडेंट्स जो है उनको ज्यादा पैसा भरना पड़ सकता है, रेंट हायर देने पड़ सकते हैं। लैंड ओनर्स के पास ऑप्शन है ना कि वो कमर्शियल चढ़ा दें। अब देखो जहाँ पे हमारा फगवाड़ा, छोटा सा टाउन है फगवाड़ा, और हमारे सामने बैंक है, और वो छोटी सी जगह पे बैंक है, हमारे घर से भी छोटी जगह से बैंक है, और उसका 1.25 लाख किराया महीने का दे रहे हैं। तो मतलब रेजिडेंशियल लोग, कोई जो घर जिसने रहना है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता फिर ऐसे एरियाज में रेंट। यस, जहाँ पे मिक्स्ड लैंड यूज है, जहाँ पे दोनों अलाउड है, कमर्शियल भी अलाउड है और रेजिडेंशियल भी अलाउड है, वहाँ पे तो फिर कॉमन पर्सन विल नॉट अफोर्ड द रेंट। रेंट कितना दे देगा बंदा, ज्यादा से ज्यादा 20-30 हजार महीने का दे देगा, 1.25 लाख थोड़ी रेंट दे सकता है महीने का वो। मैम रेंट भी डिपेंड करता है कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हैं कि रेजिडेंशियल यूज के लिए ले रहे हैं। हाँ, पर रेजिडेंशियल यूज पे भी अगर कमर्शियल की ऑप्शन है लैंडलॉर्ड के पास, तो वो रेजिडेंशियल यूज के लिए कम रेंट पे क्यों चढ़ाएगा, मुझे ये बताओ। उसको तो यही रहेगा ना, मुझे कोई कमर्शियल ही मिले बंदा, मेरे को ज्यादा रेंट मिलेगा। ठीक है, तो लोगों को जो रेजिडेंशियल रहना चाहते हैं उनको दे विल बी फोर्स्ड टू पे मोर रेंट। ठीक है, एंड इन एडिशन इफ ऑल शॉपिंग इज कन्फाइंड टू वन एरिया, तो फिर ऐसे एरियाज में टूरिज्म भी प्रमोट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्टर 17 चंडीगढ़ इज अ वेल नोन शॉपिंग एरिया, एंड वहां पे टूरिस्ट स्पेशली जाते हैं। टूरिस्ट गो स्पेशली। Finally, segregation allows local authorities to better manage parking and traffic. उससे parking and traffic better manage हो जाती है। ठीक है, on the other hand there are some disadvantages. Disadvantages में वो point आया है कि आपकी कार यूज बढ़ेगा, because लोगों को ज्यादा लंबा ट्रैवल करना, commuting time बढ़ जाएगा।
ठीक है? Yes. This also means children and people spend more time traveling, and this limits the time they can spend with family. Furthermore, mixed use enhances vitality and security of an area by increasing the number and activity of people on the street. अब मिक्स यूज से ना सिक्योरिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि ज्यादा लोग हैं वहां पे, कोई चोरी करके भागे घरों में तो कोई पता भी नहीं चलता कब भाग गया, कोई होता ही नहीं आसपास देखने वाला। पर अगर मिक्स यूज है तो लोग हमेशा ही होते हैं वहां पे, तो फिर इसलिए सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, दे माइट बी इंक्रीज्ड हाउस रॉबरीज एंड बर्गलरीज व्हेन रेजिडेंशियल एरियाज आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड एरियाज में रॉबरीज एंड बर्गलरीज ज्यादा होती हैं घरों में। ठीक है? Summing up, while land use zoning has certain downsides, it is certainly worthwhile considering its innumerable benefits. ठीक है? अब ये ऐसे आया तो लिख लोगे पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस के पॉइंट्स क्या हैं? एलिश इन्यूमरेट कर सकते हो पॉइंट्स? फायदे क्या है? लैंड यूज जोनिंग कहते हैं इसको, लैंड यूज जोनिंग, ZONING। यू कैन यूज दिस टर्म अगर याद रह जाए तो, अगर ये ऐसे आ जाए, लैंड यूज जोनिंग। इन्यूमरेट कर दो। हाँ जी, पॉइंट्स फटाफट। हाँ, तो क्वालिटी मतलब लैंड मतलब इससे ना जोनिंग से ये बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक और वो सब कम हो जाएगा, नॉइज और ट्रैफिक। हाँ, फिर सेकेंडली ये हो जाएगा कि जो रेसिडेंट्स और वो सब की प्राइस है उस पे भी असर होगा, क्योंकि रेसिडेंट्स को ज्यादा प्राइस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेक्टर्स बिजनेस और रेसिडेंट्स अलग हो गए हैं। तो और थर्ड पॉइंट डिसएडवांटेज के एडवांटेज टूरिज्म प्रमोट हाँ टूरिज्म प्रमोट होगा। और डिसएडवांटेज क्या है वो बता दो। डिसएडवांटेज में कम्यूटिंग टाइम बढ़ जाएगा, सो फैमिली को टाइम कम देना पड़ेगा, और सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो रॉबरीज और बर्गरीज बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसे इज in some cities there are few controls in the design construction of homes, office buildings, and the owners can decide on the styles of their houses. Do the advantages of this outweigh its drawbacks? There are few controls. पहले तो मुझे few controls की बात बताओ, इससे आपका क्या समझ आ रहा है? कोई कंट्रोल, नो कंट्रोल, नो कंट्रोल। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा थोड़े से कंट्रोल हैं, नहीं ऐसा नहीं है। few, quite a few. I think you remember that, right? Yes. Few controls negative connotation है, this means कोई कंट्रोल ही नहीं है, और लोग अपनी मर्जी से अपना घर बना सकते हैं, ऑफिस की बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है? इसके क्या फायदे ये है? डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स। अब हमने देखना है कि क्या इसके फायदे ज्यादा है नुकसान, हमें लिखना है। मैंने ये लिखा है कि इसके डिसएडवांटेजेस फार ज्यादा है। हाँ, ठीक है, फायदे कम है, डिसएडवांटेज ज्यादा है। डिसएडवांटेज क्या लिखे हैं पहले पैरे में? पॉइंट्स कर लेते हैं। एक तो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है? For example, if a street is known for its traditionally designed houses, a modern house may reduce the aesthetic appeal of the whole neighborhood. तो इसको क्या कहते हैं? कौन सी पोल्यूशन कहते हैं इसको? अभी हम विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन। ठीक है? Visual pollution. Visual pollution, yes. Secondly, lack of design regulations can compromise the safety of the residents, as home designers might not be aware of the area's vulnerability to potential natural disasters. For instance, some regions are prone to natural calamities like earthquakes, and construction of multiple storied houses might increase the risk of collapse during such disasters. ठीक है? अब हमारे पता है क्या हुआ, हमारे घर के पास एक घर कोई अपना बना रहा था, और उन्होंने ना बेसमेंट बनाने की सोची, और बेसमेंट के लिए उन्होंने डिग कर दिया, तो साथ वाला घर आधा हिस्सा गिर गया। तो जो रेगुलेशन हो, तो जो जहाँ पे पूडा वगैरह की रेगुलेशन है ना कि अगर साथ में घर बना हुआ है तो आप 7 फीट का डिस्टेंस आपको छोड़ना पड़ता है, आप बेसमेंट नहीं खोद सकते हो। पूरी फुल बेसमेंट तभी बनेगी अगर दोनों साइड्स पे खुला ग्राउंड है, अभी कोई घर नहीं है, नहीं तो आप बेसमेंट फुल नहीं बना सकते, आपको दोनों साइड पे 7 फीट छोड़ना है। ये रेगुलेशन नहीं हो, अगर नहीं थी रेगुलेशन, उन लोगों ने पूरा ही खोद दिया, तो क्या हुआ, साथ वाले घर का आधा हिस्सा, लकीली पता है वो NRI से घर खाली था, डैमेज टू लाइफ, बट उनका आधा घर टूट गया, एकदम गिर गया। How they compensate them? हाँ, How they compensate them?
बड़ा हुई थी, बड़ा कॉम्पेंसेट तो करना पड़ा था उनको काफी। मुझे अब पता है कि कॉम्पेंसेट बड़ा झगड़ा उनको बाहर से है, उनको आना पड़ा था, दे हैड टू फ्लाई बैक एंड उनको काफी उनको झटका लगा था एकदम कि क्या हो गया। तो कॉम्पेंसेशन तो हुई थी काफी हद तक, पर ये देखो ये डिजाइन रेगुलेशंस जो हैं ये फॉलो करनी पड़ती हैं, अगर नहीं करेंगे तो खतरा हो सकता है। ठीक है, और कई जगह नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वहाँ पे सरकार रेगुलेशन करती है कि ऐसी चीज नहीं बना सकते हो, ऐसी नहीं बना सकते हो, बनाओगे तो आपको भी खतरा है, साथ वाले घरों को भी खतरा हो जाएगा। ठीक है, यस हाँ। और दूसरा अगले पैरे में मैंने लिखा है कि डिजाइन रिस्ट्रिक्शन नेसेसरी है बिकॉज न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो लाइट एंड वेंटिलेशन दूसरे हाउसेस की ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे घर में धूप आ रही है, पर हमारे साथ वाले घर ने अपनी दीवार है ना वो पूरे गेट तक ऊपर ऊंची दीवार ले आए, तो हमारी तो धूप रुक गई। तो ये भी नेगेटिव है कि साथ वाले घरों की आप जैसे आप वो कहेंगे कि हमारा लैंड है, हम जो मर्जी करें। ठीक है, पर हमारे को उसका इफेक्ट होता है, तो ये भी एक नेगेटिव है। बिटरनेस हो जाती है सोसाइटीज में, आपस में बोलचाल बंद हो जाती है, झगड़े होते हैं। ठीक है, रूल्स इंश्योर दैट एवरीवन कैन एंजॉय डिसेंट लिविंग कंडीशंस। अब पूडा के रूल्स है ना, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन के रूल्स है अथॉरिटी के कि आगे 10 फुट, पीछे आगे 15 फुट और पीछे 10 फुट छोड़ना ही छोड़ना है, आप नहीं बना सकते हो आगे घर। ठीक है, तो उसकी वजह से साथ वाले घरों को भी पूरा लाइट एयर पूरी मिलती है। ठीक है, so these rules should be there। अगर ये नहीं होंगी तो बिटरनेस अमंग सोसाइटीज होंगी, बिकॉज लोग दूसरे के घरों की लाइट और एयर को रोक सकते हैं, लाइट एंड वेंटिलेशन। ठीक है, यस ओके। लैक ऑफ डिजाइन रिक्वायरमेंट कैन ऑल्सो लीड टू एंक्रोचमेंट्स ऑन टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अब अगर डिजाइन रिक्वायरमेंट को आपने नहीं ध्यान में रखा, कुछ भी बना दिया, तो आगे सड़क है, लोग आगे 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 बढ़ते जाते हैं, एंक्रोचमेंट कर देते हैं। आपने सुनी है बात एंक्रोचमेंट्स की? यस और बिल्कुल वो खत्म कर गवर्नमेंट निकाल भी रही है वो सब, मतलब तुड़वा रही है। देयर इज वन पर्टिकुलर वर्ड फॉर दिस। जब लाइट रुक जाती है, जहाँ कोई हम चीज एंजॉय करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से रुक जाती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है ईजमेंट राइट्स। दीज आर आवर ईजमेंट राइट्स। एक मिनट, मेरे को सुना नहीं है सुखप्रीत, मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैम जो आपने लाइट वाली बात बताई ना, जिस चीज को हम उसका वर्ड बताओ, क्या कहते हैं उसको? ईजमेंट राइट्स। easement, EASEMENT? Yes ma'am, these are our easement rights. Okay, yes ma'am. so easement rights है वो भी वो लोगों के मतलब खत्म होते हैं। everybody has a right to their easement, यही कह रहे हो ना आप? Yes ma'am. You can put this easement right. Can you type this in the chat? Yes, just wait ma'am. Lines हाँ, लाइंस किसने बनाया? तेजवीर सिंह। ईजमेंट राइट्स, ठीक है, ईजमेंट राइट्स जो हैं वो कह सकते हो आप, डाल सकते हो ऐसे वर्ड्स अगर आपको टेक्निकल वर्ड कोई पता है। अब देखो लर्निंग है। ईजमेंट एक्ट भी है मैम। ईजमेंट राइट्स, ठीक है, ईजमेंट एक्ट है, ईजमेंट राइट्स है, वही हो गया ना, ये रूल्स हैं, ईजमेंट राइट्स हैं। आप साथ वाले घर की तेजबीर ये येलो लाइंस हटा दो बेटे। ओके, फिर इनके फायदे क्या है, ये देख लो। फायदे क्या है? द मेन बेनिफिट इज the main benefit is that there are few benefits, also a few benefits. The main benefit is that it gives owners an opportunity to design houses according to their personal preferences. It may vary significantly from person to person. For example, people who prefer spending time with nature might want a bigger lawn and less built up space. Furthermore, eclectic neighborhoods with diverse building designs have their own charm and beauty. ठीक है, eclectic, what is the meaning? Yeah, उसका मैंने eclectic पहली बार सुना। Eclectic होता है not following one style or set of ideas but choosing from or using a wide variety. She has very eclectic tastes in literature. मैं आपको शो करती हूँ इसका। Eclectic means eclectic. Okay. Not following one style or set of ideas, but choosing from or using a wide variety. She has very eclectic taste in literature, variety of taste. His house is an eclectic mixture of the antique and the modern. ठीक है? तो ये eclectic है। तो it means different. different है जिसमें सब कुछ। Okay.
ओके, सो ये eclectic neighborhoods हैं, ये वर्ड जो है eclectic neighborhoods with diverse building designs have their own charm and beauty. ठीक है, उनका अपना ही charm है, उनकी अपनी beauty है. ठीक है. Okay, in conclusion, although liberty in constructing homes according to one's preference can bring about certain benefits, its downsides are much more. ठीक है. It is important for all towns and cities to have large public outdoor places like squares and parks. To what extent do you agree or disagree? चलो ये बताओ कि जो सारे towns and cities हैं इसमें large public लोगों के लिए outdoor places होनी चाहिए, जैसे squares हैं, parks हैं. To what extent do you agree or disagree? मैंने agree करा है, मैंने लिखा है it is imperative, it is imperative to have such. Improve the health. हाँ, और इससे क्या होगा, मैंने 3 पॉइंट्स डाले हैं ऐसे में, मैंने ऊपर डाल दिए हैं इंट्रोडक्शन में. एज दे इम्प्रूव नेशंस हेल्थ, बूस्ट सोशल, यस, इम्प्रूव इकोनॉमीज. यस, हेल्थ इम्प्रूव होती है लोगों की, नेशन की हेल्थ. सोशल कोहेजन मींस लोग आपस में एक दूसरे को वहीं मिलते हैं, घरों में बुलाने, सोशलाइजेशन, यस. एंड इकोनॉमीज पे बेटर होता है बिकॉज सच प्लेसेस बिकम टूरिस्ट प्लेसेस आल्सो. यस, तो इकोनॉमीज भी बेटर होती हैं. ठीक है. और इन एरियाज में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होस्ट होते हैं, फार्मर्स मार्केट लगा सकते हैं, आर्ट शो कर सकते हैं, आइडेंटिटी होती है जगह की, तो कमर्शियल यूज के लिए भी होता है. तो इससे टूरिज्म, इससे मनी रेवेन्यू आता है, तो इकोनॉमी बूस्ट होती है. और नेशन की हेल्थ देख लो कैसे लिखा है. There are many advantages of having public outdoor places such as squares and parks. Firstly, these facilities have a major role in improving the overall health and wellness of the individuals and the community. People with easy access to these facilities are physically more active and tend to spend more time outdoors, breathing the fresh air. They create a healthy environment as plants and trees reduce pollution and improve air quality. In addition, these green spaces in the middle of a congested urban landscape provide a connection to nature, which relieves stress and improves mental health. तो ठीक है ना, ग्रीन एरियाज होते हैं तो नेचर के साथ कनेक्टिविटी होती है, इससे स्ट्रेस कम होता है, मेंटल हेल्थ बेटर होती है. और अगर आपके घर के पास पार्क्स है तो आप घर जरूर जाओगे वहां सैर सूर करने. ठीक है. और आपकी आउटडोर एक्टिविटी बढ़ेगी. ठीक है. जिनके पास इजी एक्सेस है, जैसे अगर जहां मैं पहले रहती थी वहां हमारे घर के बिल्कुल सामने पार्क है छोटा सा, तो मैं बहुत एक घंटा वहां वॉक करने चली जाती थी. अब यहाँ जहाँ रहती हूँ वहाँ पार्क नहीं है बिल्कुल, तो मैं जाती नहीं हूँ कहीं पे भी. वहाँ इजी एक्सेस था, मेरे को पता था सामने ही है, मैं भाग के आ जाऊंगी अगर कोई प्रॉब्लम हुई घर में या जरूरत हुई. अब यहाँ पे स्पेशली जाना पड़ता है तो नहीं जाया जाता. तो इजी एक्सेस हो तो ज्यादा लोग इनको प्रेफर करेंगे वहां सैर करना जाना. ठीक है. और ये आप देख सकते हो नेचर के साथ रहना भी आपको बेनिफिट देता है. फिर इकोनॉमी का पॉइंट अगले पैरे में मैं ले आई हूँ. ठीक है. और उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो. थर्ड पैरे में इंटरैक्शन वाली, सोशल इंटरैक्शन, सोशल कोहेजन वाली बात करी है. ठीक है. People get to know one another, learn about one another's culture and discuss common interests, concerns and goals. More people outside their homes also makes neighborhoods safer. ठीक है. To conclude, large open spaces such as parks and squares are absolutely essential for all towns and cities as they serve many important purposes. ठीक है. So ये आपको ऐसे अब आया तो आप लिख पाओगे अच्छा सा. Points हैं? Yes, ma'am. Okay. The restoration of old buildings in major cities in the world involves a lot of government expenditure. This money should be used in new housing and road development. तो बहुत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है इस पे यूज. ये मनी जो है हाउसिंग और रोड डेवलपमेंट में यूज होनी चाहिए. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? चलो. Ma'am, this essay is similar to the previous one. हाँ, काफी कुछ सिमिलर है उससे. ऑलमोस्ट सिमिलर है. हाँ, तो मैंने इसमें ये लिख दिया, मैंने पार्शियल जाके ये लिखा है, इसमें मैंने पार्शियल गई हूँ, मैंने लिखा है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं विच आर ए थ्रेट टू लाइफ, ना वो ब्यूटीफुल है ना वो यूजफुल है, उनको तो डिमोलिश कर देना चाहिए. और जो बिल्डिंग्स जो है उनमें जो कैरेक्टर देती है उनको रेनोवेट करना चाहिए. तो ये मैंने लिखा है. ठीक है. यस. तो ऐसा सिमिलर हम प्रीवियस में भी तो मतलब लिख सकते हैं, राइट? मतलब दोनों ओल्ड बिल्डिंग्स व्हिच आर नाइदर यूजफुल नॉट ब्यूटीफुल, उनको डिमोलिश करो
और जो ओल्ड बिल्डिंग्स है जो करेक्टर दे रही है जगह को या आइडेंटिटी दे रहे हैं, जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, उनको रेनोवेट करो एट ऑल कॉस्ट्स। बस फिर नई बिल्डिंग्स बनाने के फायदे लिख दो कि न्यू बिल्डिंग्स एंड रोड्स बनाने के क्या फायदे हैं और पुरानी जो है कुछ को रिस्टोर करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, ठीक है। ये एक और सिमिलर ऐसे आया हुआ है, सम पीपल थिंक दैट टू मच मनी हैज बीन स्पेंट looking after and repairing old buildings, so we should knock down old buildings and build modern ones instead. To what extent? ये भी सेम है, ठीक है। तो आप इसमें भी वही चीज लिख सकते हो कि वो पुरानी बिल्डिंग्स जो कभी भी collapse हो सकती है and can be a threat to life, they should be demolished. And those old buildings which can be renovated and some useful purpose can be taken out of them, such as tourism, or they can be converted to library or a hotel, they should be preserved. ठीक है। Nowadays, some buildings such as offices and schools have open space design instead of separate rooms. Why is it so? Do you think it is a positive or a negative development? आपने देखी है कुछ नई बिल्डिंग्स जिनमें ओपन स्पेस डिजाइन है, सेपरेट रूम्स नहीं है, ऐसा क्यों है? डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? यस मैम, पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। क्योंकि मतलब सबको सोशलाइज करने का वो मौका मिलेगा। अगर ऑफिस में मतलब ऐसा होता है कि सिर्फ दो जने के बीच में ऐसा कुछ सिर्फ वही ऐसा कुछ वुडन होता है, बाकी तो पूरा ऑफिस मतलब सिमिलर ही होता है। हाँ, वो देखो इसमें क्या है, मैंने ये लिखा है लार्जली पॉजिटिव है, पर थोड़े नेगेटिव भी हैं। तो थोड़े नेगेटिव है वो लिख लो कि जैसे एक ही कमरे में सब कुछ हो रहा है तो नॉइज तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगी ना, कंसंट्रेट, हाँ, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। टीचर्स को भी अपने आप को पढ़ाने के लिए शाउट करना पड़ेगा। अगर सारी क्लासरूम एक ही कमरे में है, एक एक कॉर्नर में खुले खुले में ही है, 4 टीचर्स बैठे हैं अपने अपने बच्चों को लेके, तो नॉइज तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगी ना। ठीक है मैम, ऑफिस के टर्म में सही भी है, पॉजिटिव भी है काफी। हाँ, तो ऑफिसेस के लिए पॉजिटिव है, सबको दिख रहा है कि सब काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है काम करने की, और मैम डिस्कशंस इजी हो जाती हैं, इजी हो जाता है। ठीक है, मैम गुड़गांव में कंस्ट्रक्ट करना भी कितना इजी है, कोई कॉस्ट नहीं होता। हाँ, तो ये जो ओपन डिजाइन, इससे थोड़ा मतलब अच्छी लुक आती है। पर्सनली वी बॉट दिस हाउस रेडीमेड, लिया था हमने 3 साल पहले। इसमें ना बहुत बड़ा एक हॉल है, उसी में लॉबी है, उसी में ड्राइंग रूम है और उसी में डाइनिंग रूम है, उसी में किचन है बड़ी सी। तो जो भी आता है, घर बड़ा खुला घर है, बड़ा ही सुंदर, कितनी जगह कम है पर इतनी खुली लुक देता है। और मुझे हमारे नेबर्स आके कहते हैं, अच्छा फिर आप ड्राइंग रूम के आगे दरवाजा कौन सा लगवा रहे हो? मैं कहा मैं तो नहीं लगवा रही हूँ, दरवाजा खुला है, सब देखते हैं। किचन में भी काम करते हैं सब इकट्ठे और सारे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे खुला खुला। सो इट्स लाइक ओपन स्पेस डिजाइन में अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब्स आती हैं बंद कमरों से, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैम ऑफिसेज में जैसे अभी स्टार्टअप्स है, तो गुड़गांव में हमने देखा था एक अपार्टमेंट था, मतलब एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 4 बड़े बड़े टेबल्स लगे हुए थे जिसमें 4 कंपनीज चल रही थी और सीईओ भी वहीं बैठता था और जो एम्प्लॉइज थे वो भी वहीं बैठते थे। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लगता, बड़ा पॉजिटिव। देखो जापानीज ऑफिस एंड अमेरिकन ऑफिस का एक ग्राफ है एकेडमिक की बुक में। यस, हाँ, वो बिल्कुल ऐसा है। जापानीज ऑफिस में एक है बड़ा सा, ठीक है, ओपन स्पेस डिजाइन, और अमेरिकन ऑफिस में हर एक को अपना अपना मिला हुआ कैबिन दिया हुआ है। हाँ, वो अंदर बैठ के जो मर्जी करें, और ये सारा बाहर है। तो जापानीज पीपल तभी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एवरीबॉडी इज वर्किंग, सुपरवाइजर्स भी ऊपर उसी कमरे में बैठे हैं, दे कैन सी वर्क इज बीइंग डन प्रॉपर्ली। ठीक है, सो दिस, आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। अब हमने ऐसे डिस्कस कर लिया है, बट इफ यू रीड द एसे नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। ठीक है, अब नेक्स्ट एसे ये मैंने उस मंडे को करवाए थे बाकी के, तो हमारे पूरे 30 अराउंड 40 एसेस डिस्कस हो गए इस हफ्ते। ठीक है, अगर 40 एसेस हम एक वीक में डिस्कस करें ना, तो 10 वीक्स में बुक खत्म होती है, 10-11 वीक्स में, अगर सारे एसेस आपने ऐसे डिस्कस करने हैं।
आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे ताकि पूरे आपको जो अब आपने 1 मंथ में करनी है, एकेडमिक स्टूडेंट्स ने, तो 80 एसेस पर वीक पढ़ो, ठीक है। और अगर आपको आपको अपना ना टाइम टेबल जब आप ज्वाइन करते हो आइएल्ट्स, जब आपको करनी है, आप अपना देखो कब तक एग्जाम देने का सोचा है, एंड अपने लिए ना एक बना लो प्लान, how many essays you need to do per day, how many graphs you need to do per day. If you really want to do well, you must go through all the ideas of all the essays. Sometimes it is, even the best of language abilities will not help you if you don't have points for the essay. Am I right? Yes. नजर Yes, आपको? ma'am. लैंग्वेज एबिलिटीज अच्छी होना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ आइडियाज होने भी बहुत जरूरी है। रेलेवेंट पॉइंट्स मैम। रेलेवेंट पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। हाँ जी ਮੈਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। प्लान करना है ऐसे नु? यस मैम, यस प्लानिंग। लाइक क्या होता है कि मैम ऐसे ऐसे लिखने के टाइम क्या होता है कि कई बार होता है कि जो हमने सेकंड पैराग्राफ में सोचा है ना मैम, ਤੇ ਉਹ मतलब कि ਆਪਾਂ थर्ड पैराग्राफ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, थर्ड सेकंड ਚ लिख दिन्ने आ, वो चीज प्रॉब्लम आ जाती है मैम। अच्छा you want me to वो तो अभी हम आपको एक दूसरे सब बच्चे बता देंगे। देखो दिस इज सो मेनी, आपको ये प्लान करना है कि अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे है, ये अपने पहले पैरे में एडवांटेज डालने हैं, दूसरे तीसरे में डिसएडवांटेज डालने हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, you can write advantages on top। अगर एक पैरे में एडवांटेज है और 2 पैरे में डिसएडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज लिख दो, या 2 पैरे के डिसएडवांटेज ऊपर लिख के फिर एक पैरे का एडवांटेज लिख दो। पर ऐसे मत करना कि एडवांटेज वाला पैरा, फिर डिसएडवांटेज वाला पैरा, फिर एडवांटेज वाला पैरा, वो खिचड़ी हो जाएगी। ओके, for in the khichdi the chawal have to be together and the dal has to be separate. Yes. You can't put one chawal, one dal, one chawal. हाँ मैम आपने वो वर्टिकल सिटी और हॉरिजॉन्टल सिटी वाला बोला था ना, वो मुझे समझ में, मतलब मुझे अभी भी मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिटी। वर्टिकल सिटी में आपने उन्होंने ना टॉपिक में ही लिख दिया है, इन विच देयर आर टू मेनी टॉल बिल्डिंग्स, वो वर्टिकल बिल्डिंग्स है। तो उन्होंने ना टॉपिक में आपके लिए सिंपलीफाई कर दिया, उनका मतलब है ही नहीं वर्टिकल सिटी वाला। वर्टिकल सिटी का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है? एक सिटी वर्टिकल जा रही है, मतलब ओके समझ गए। अगर आपने जैसे मैं, हमारा फगवाड़ा है, अगर मेरे को फगवाड़ा में कोर्ट में जाना है तो मुझे 100th फ्लोर पे जाना है, वहाँ कोर्ट है। अगर मुझे कॉलेज जाना है तो 150th फ्लोर पे कॉलेज है, मतलब ऊपर नीचे ही जाना है हमें, साइड में नहीं जाना। दैट इज बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के। हाँ वो है ना, और उसी में ही फार्मिंग भी हो रही है वर्टिकल। आई मीन यू कैन इमेजिन सिटीज, वर्टिकल सिटीज, मतलब वहीं पे आप किसी फ्लोर पे, मतलब ऐसी है, मतलब दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। पर यहाँ पे वर्टिकल सिटी का मतलब एक्चुअली वो है ही नहीं, उन्होंने ना टॉपिक में ही दे दिया कि वर्टिकल सिटीज वेयर देयर आर टू मेनी टॉल बिल्डिंग। तो हमने बस टॉल बिल्डिंग्स वाला एरिया ले लेना कि वो वर्टिकल सिटी है। जैसे यूएस में न्यूयॉर्क है, सारी ऊंची बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ठीक है, तो वो वर्टिकल सिटी हो गया। ठीक है, उसमें यही फायदा है कि बहुत ज्यादा लोग थोड़ी जगह में अकोमोडेट हो जाते हैं। वर्टिकल लंबी in vertical cities there will be a reduction in crime rate also. क्राइम रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। Yes ma'am. ठीक है, वो भी है, क्राइम रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। ये सब है। बाकी अब मैं आज आपको ना एकेडमिक स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको मैं, अच्छा मुझे सजेशन दो भाई, मैं रीडिंग क्लास सोच रही थी, एक पैसेज कराऊं। थर्ड पैसेज ऑफ द जनरल ट्रेनिंग इज द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज द फर्स्ट पैसेज ऑफ द एकेडमिक स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर जीटी स्टूडेंट्स भी अगर वो क्लास अटेंड कर लेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो 1 पैसेज अ डे ही कराऊंगी, इट विल बी अराउंड 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स क्लास डेली, दैट विल बी रीडिंग, उसमें टिप्स वगैरह भी हो जाएंगे। तो मुझे बताओ मैं रीडिंग पहले डालूं या कैसे करूं, क्या करूं इसका? मैम पुट इट ऑन द सेम डे डालूंगी सुबह। ठीक है, हाँ, और रीडिंग पहले कराएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे से लोग रीडिंग में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मतलब हाँ है ना, उस पहले नहीं कराओ तो बेटर रहेगा ना। हाँ उसी टाइम अगर आप खोलो साथ में, और साथ में करेंगे 1 पैसेज। अगर आप पहले दे देंगे तो सोचेंगे कि ये तो हमने किया हुआ है। हाँ, फिर वो बोरिंग हो जाती है क्लास। यस मैम। ठीक है,
So I have very good reading passages जो मैंने बुक से कंपाइल करे हुए हैं, पास्ट एग्जाम नहीं है, बट बेसिकली डजंट मैटर, पास्ट एग्जाम रीडिंग्स आपके पास जो है आप कर लो उनको, उनमें से देखो 2-3 महीने में कोई एक पैसेज आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें से हर बार कोई पैसेज आता है देखो, वो तो है नहीं। तो ये रीडिंग तो बेसिकली एग्जाम रीडिंग्स तो आपको दी हुई है, वो तो आप कर ही लो, 2 बुक्स हैं आपके पास, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कई स्टूडेंट्स हैं तो उनको रोटेशन में पता नहीं कितनी बार करते हैं। हाँ यस सर, हाँ we can't hear you. मैम ये जो easement right है मैम, एक बार डिक्शनरी में इसका सर्च कर लो। 19 दिसंबर को मुझे कुछ और लग रहा है। No ma'am, just wait. Ma'am, can I explain easement right? जो एग्जाम था मैंने ना डिक्शनरी खोल ली है, तो easement का मतलब ये है the right to cross or use somebody's land for a particular purpose, to cross or use easement, No ma'am, of peace or happiness, ये है word। 19 दिसंबर को आया था। कोई ना कोई पैसा आ जाता है कभी कभी, ठीक है। easement right है, ये easement है, easement means to cross or use somebody's land for a particular purpose। ma'am, can I explain easement? करो पर आपकी आवाज कम आती है सुखप्रीत। मैम पता नहीं क्या, am I audible ma'am right now? हाँ अब ठीक है। हाँ, An easement is a right to use another's property. It's a right which the owner of a particular land enjoys over an adjacent property. Okay. Yes, ma'am. There is one word, adjacent property, which he does not possess. It's the right over a property belonging to someone else and not to person claiming easement. Ma'am, here the property doesn't means. Hello. हाँ, here the property doesn't mean like land related properties. Okay. Ma'am, the light we enjoy from many years, that is our property also. Yes. Okay. Yes ma'am. ठीक है। So the right to use others property for a particular purpose, आप easement right किसी का नहीं कर सकते हो खराब, क्योंकि उनका अपना उनको अपनी लाइट वो एंजॉय कर रहे हैं, आप आगे आके अपना घर बना दो, उनका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, वो भी गलत है। That is what it means, right? Please ma'am. Yeah, that is Yes. Chalo, okay then I'm ending the meeting now and I'll be putting up the mock test for the academic students. आज मैं एक घंटे में डाल दूंगी राइटिंग, कुछ बच्चे आज भेज देना, बाकी कल भेज देना। It takes me a lot of time to check the copies. ठीक है? Yes ma'am. Okay ma'am. Excuse me ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, will you share please the PDF of the today's essay? मैंने कल शेयर करी थी। Okay ma'am. ऐसे करो, जो बच्चों ने आज ज्वाइन करा ना, सारे ग्रुप्स में जिनके पास कल वाली फाइल है उसको शेयर कर दो, वापस कर दोगे एक बंदा ग्रुप में अपने रिस्पेक्टिव। Yes ma'am, do we have any test? I'm a GT student ma'am, do we have any like mock test? नहीं, जीटी स्टूडेंट का तो डेली टास्क चेक हो रहा है ना, उनका तो है ही नहीं मॉक टेस्ट का फंडा। Okay. इनका डेली नहीं होता ना एकेडमिक वालों का, इनका तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट दे आर डूइंग। हाँ, then it is very important for them. Okay, thank you. वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मॉक टेस्ट में राइटिंग में आइडिया लगता है ना, मुझे बच्चे पूछते हैं मैम आप पेपर भर दें, मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट के बाद पूछना। Mock test has to be, very honest. The problem is children are not honest. छोटे हैं ना अभी, ये +2 के बच्चे, 18 साल के बच्चे हैं, इनको अभी इतनी समझ नहीं है कि एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला अगर यहाँ पे चीटिंग करेंगे, वहाँ पे ये फायदा नहीं होने वाला इसका। तो the true picture. Actually we have spelling mistakes also. हाँ, we have spelling mistakes also during our test because we don't use mobile phones or such things. We do it by our own, and this is what they need to understand, that nobody will help you out during the exam. Yes, that is it. ठीक है? चलो। Excuse me ma'am. Yes. Ma'am, when will you take class for task 1? ग्राफ की? Yes ma'am. तो बेटे हर ट्यूसडे को होती है ना ग्राफ की क्लास। Okay ma'am. हाँ, ट्यूसडे ग्राफ की क्लास है।
इस बार I discussed the tables, I shared the tables in my book. वो भी फाइल शेयर कर देना बच्चों के लिए दोबारा टेबल्स की, ठीक है? Zoom GM, Zoom BM, Zoom डेमो, 3 ग्रुप से एकेडमिक के अपने अपनी एक जना शेयर कर देना, रीशेयर हो जाएगी जिन बच्चों ने कल ज्वाइन करा उनके लिए. ओके ओके देन, बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am.